ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਕਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਵੱਲ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਰਾਮ राम नील कमल जी, राम राम। और सुनाओ की सारे दर्शकों ने राम राम, सत श्री अकाल। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋ ਬੇੜੇ LPG ਗੈਸ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ HP ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, HP ਗੈਸ ਮਾਈ HP, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ KYC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਏ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੋਇਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਦਾ ਆ, OTP ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ OTP ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਲੰਡਰ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, OTP ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਡਿਲੀਵਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ KYC ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ KYC ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਤੋਂ OTP ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ रही ने। बिल्कुल नील कमल जी, परेशानी है भी है, और जिस तरह की आपने बात करी भी सरकारें के दावे कुछ हो रहे हैं और हकीकत धरातल पे कुछ और हुआ है। और ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि गैस सिलेंडरों को लेकर लोग परेशान हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही और उनको सिलेंडर मिल नहीं रहे, फिर चाहे वो OTP ना आने का बहाना हो या फिर जिस तरह का आपने बताया बिल्कुल KYC का ज़्यादातर उसको डिलीवर कर दिया। अब डिलीवर दिखा दिया तो सिलेंडर डिलीवर किसको होया, यह भी एक बड़ी बात है। ये एक पंजाब की बात का घटना का जिक्र करने लग रहे, क्योंकि एक दर्शक ने आपको बताया था कि इस बात का जिक्र जरूर करना, तो आपने कराया। तो ये जो मामले हैं ये सारी जगह हो रहे हैं कमल जी, और गैस को लेकर ना त्राहिमाम परेशानी है। बिल्कुल त्राहिमाम हैगी है। जिथे कमर्शियल गैस सिलेंडर की गल आती है जरूर ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, अगला इतनी तरीक ਨੂੰ डिलीवर होगा, पिछला इतनी तरीक ਨੂੰ डिलीवर होया ਸੀ। आपकी बात समझ में आ गई। उसको क्या करना, एक बार कह लो चाहे उसको 10 बार कह लो, बात वही रहेगी। और एक बार में भी ये है कि सिलेंडर डिलीवर नहीं होया, और 10 बार में भी यही है, और एक बार में भी ये है कि लोग आज भी परेशान हैं, अच्छा 10 बार के वाले लोग परेशान हैं गैस को लेकर। और एक मैं नीलकमल जी और जिक्र करूं सिलेंडरों का, देखो लोग जो है
जब गैस की तंगी आई तो चूल्हों की तरफ जाने लग गए। भाई रोटी तो बनाकर खानी है, तो लोगों ने ऑप्शन में लिया चूल्हा। चूल्हा इलेक्ट्रिक चूल्हा भी है और चूल्हा मिट्टी का चूल्हा भी है। पिछले दिनों में इलेक्ट्रिक चूल्हों की इतनी डिमांड बढ़ी नीलकमल जी, जिससे मन में एक चिंता और आई। सरकारें कहने लग रही कि जो है चूल्हे का इस्तेमाल किया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि हमारे पास बिजली बहुत है और चूल्हे का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में बिजली का पूरा किस तरीके से पड़ेंगे यह भी सरकारों ने पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि आगे एसी भी चलेंगे, गर्मी आने लग रही और चूल्हे भी चलेंगे, तो फिर बिजली की जो हालात कैसे रहेंगे, यह बात भी जो है चिंता का विषय है। और दूसरी बात नीलकमल जी, मैं आज आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए बैठे हूँ। बात कुरुक्षेत्र की, क्योंकि आपने सिलेंडरों की बात करी, तो आज हम सिलेंडरों पर ही बात करेंगे। फायदे भी हुआ चीज के और नुकसान भी हुआ। फायदा हुआ कि झट से जो है रोटी बना लें और घर का खा लें और अपने काम पर निकल जाए। नुकसान इस बात की भी है नीलकमल जी, जब कोई अनहोनी घटना घट जाती है सिलेंडर की वजह से, तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। दो नुकसान का आज मैं जिक्र करूंगा जो आज तड़के होया। एक घटना घट गई कुरुक्षेत्र में, सिलेंडर फटने से 8 लोग जो है वो घायल हो गए, एक परिवार के। और दूसरा जिक्र करूंगा इंदौर का। इंदौर में जो है 7 लोगों की मौत होगी सिलेंडर के फटने से कह लूं, या फिर जो मैं बात बताऊंगा उसमें आपने ये तय करना है कि ये मौत कैसे हुई। हालांकि उसमें जिक्र जो है सिलेंडर का भी है। कुरुक्षेत्र की मैं बात करूं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में घर वाली जो गैस है उसमें आज सुबह जो है तड़के 6:30 बजे के आसपास एक महिला रोटी बनाने लग रही थी घर में। साबाद का यारी गांव है, तो यारा गांव की ये बात है नीलकमल जी, जिसमें जो है ये घटना घट गई। उसी दौरान जो है सिलेंडर में तेजाब होया और आग लगी। घर में बच्चे सोने लग रहे थे, जो लोग सो रहे थे वे भी जो है उसमें घायल हो गए, क्योंकि जुलूस गए। पड़ोसियों ने देखा भी धमाका हो गया, तो वो पड़ोसी जो है वहाँ गए, उन्होंने जो है उनको अस्पताल में भर्ती कराया। धमाका इतना जोरदार होया सिलेंडर फटने का कि दीवारों में तरेड़ आ गई, टाइलें फूट गई, घर के जो है बहुत सारे नुकसान हुए नीलकमल जी। तो ये बात है सिलेंडर के नुकसान की। भाई कहते हैं ना कुछ फायदे भी हैं और बहुत सारे उसके नुकसान भी हुआ। दूसरा जिक्र मैं करूंगा नीलकमल जी इंदौर की घटना का। और इंदौर की घटना से हमने 2 तरीके की शिक्षा लेने की जरूरत है। इंदौर की घटना में जिक्र इस बात का करेंगे, एक तो सिलेंडर का जिक्र है, एक जिक्र है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और तीसरा जिक्र है डिजिटल लॉक का। ये तीनों चीजें घर में रखी किस तरह से खतरनाक साबित हुआ, ये बात हमने इंदौर से जो है शिक्षा लेने की जरूरत है। इंदौर के बंगाली चौराहे के पास जो है ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में आज सुबह तड़के 4 बजे भीषण हादसा हो गया, आगजनी होगी, दुर्घटना होगी। एक इलेक्ट्रिक कार थी। भाई पहला सवाल, भाई इलेक्ट्रिक कार चलाना कितना जो है सुरक्षित है, इस बात का सवाल यहाँ खड़े हो गया। इलेक्ट्रिक कार जो है चार्ज होने लग रही थी, चार्ज होने के दौरान जो है उसमें शॉर्ट सर्किट होया, और शॉर्ट सर्किट होने से जो है घर में आग लगी। 3 मंजिला मकान था, सारे के सारे मकान को अपनी उसने चपेट में ले लिया। और शहर के जो बड़े बिजनेसमैन समेत जो है 7 लोगों की इसमें मौत होगी। 7 लोगों में कुछ रिश्तेदार भी घर में आए हुए थे, वो भी जो है इसमें नीलकमल जी घटना का शिकार हो गए। पुगलिया ये परिवार था जिसके बाद जो है कार चार्जिंग पर लगी हुई थी, जिससे घटना घटी। तड़की 4 बजे की बात है। अब जो है बात आई सिलेंडर की। भाई घर में जो है सिलेंडर फटे, एक के बाद एक कई सिलेंडर फटे। सिलेंडर इतनी जोर से फटे कि एक दीवार ढह, लोगों को निकलने का मौका मिला नहीं। जिस तरह मैंने बताया भी ससुराल से 5-6 लोग आए हुए थे, वो भी उसमें नुकसान हो गया और परिवार के मुखिया की जो है इसमें मौत होगी। घर में ज्वलनशील पदार्थ रखना कितने खतरनाक सिद्ध हो जाए। पॉलीमर का काम करना था ये, और इसमें जो है कुछ केमिकल थे जो घर में रखे हुए थे, कुछ उनकी वजह से आग भड़की, शॉर्ट सर्किट हुआ था। कुछ जो है पॉलीमर में आग लगी, उसके बाद जो है सिलेंडरों में आग लगी, एक के बाद एक कई धमाके हुए और जिसमें जो है 7 लोग मर गए। तीसरी मैंने बात कही थी, मैं जिक्र करूंगा डिजिटल लॉक का। घर में आजकल हम सुरक्षा घर में बनी रहे, इसके लिए डिजिटल लॉक लगवाने लग गए। लेकिन एक घटना ये जिसका मैंने जिक्र कराया, इस घर में डिजिटल लॉक लगा हुआ था। जैसे ही डिजिटल लॉक लगा था, जब सिलेंडर फटे, आग लगी, तो घर की बिजली होगी गुल और डिजिटल लॉक ने काम करना छोड़ दिया। ये लोग जो है घर से बाहर निकल नहीं पाए क्योंकि दरवाजा लॉक था। जो बचाने के लिए लोग बाहर से आए,
जो सुरक्षाकर्मी आए उन्होंने दरवाजा तोड़ कर फिर वो घर के अंदर गए। मतलब बात ये होगी कि डिजिटल लॉक कितना खतरनाक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना खतरनाक है, ये बातें सोचने की सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा एक जिक्र और मैं करूँ, ऐसा ही एक हादसा इंदौर में पहले भी हुआ था। वो जो है उसमें एक कांग्रेस के नेता थे प्रवेश अग्रवाल, उसके घर में भी डिजिटल लॉक लग रहा था। ऐसी घटना घटी, डिजिटल लॉक जो है बिजली घर की चली गई, खुला नहीं, और लोग जो है फिर वो अंदर उसमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाले। तो बात ये है कि डिजिटल लॉक घरों पे आजकल लोग लगवाने लग रहे। सुरक्षा के नजरिए से ये कितना साबित है, इन दो घटनाओं ना ये भी जो है सवाल इसमें नीलकमल जी खड़े करती है। बिल्कुल सवाल ये खड़े करते कि हादसे की स्थिति च बाहरी खतरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਜਾਂ ਥੰਬ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ भी बन जाती हैं। बिल्कुल। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा नीलकमल जी पंजाब का। अब पंजाब में आजकल युद्ध नशे के विरुद्ध चल रहा है, और मैंने कहूँ भले ही पंजाब सरकार ने जो है युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला रखा हो, उसमें सफलता हासिल होने के दावे भी उन्होंने करे, बहुत सारे आंकड़े दिए भाई ये उसमें से इतनी चीज पकड़ी, इतना पैसा पकड़ा, इतने जो है गैंगस्टरों के घर जो है डिमोलिश करे, उन्होंने डिमोलिश करे। परंतु पंजाब में आज भी एक घटना ने इन सब बातों पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक बेटे ने अपनी माँ को दीवार में जो है पटक कर मार दिया, जिससे उसकी हत्या होगी। नशे का जिक्र इसलिए क्योंकि ये लड़का शराब पीता था, नशे का आदी था। तो क्या फिर यह नशे की कैटेगरी के हिसाब से हम नशा रोकने लग रहे? जैसे जिस नशे को पंजाब सरकार रोकने लग रही वो जो है सूखे नशे हैं, जो तस्करियों का है, चिट्टे नशे हैं। लेकिन सोचना ये भी पड़ेगा कि शराब भी नशा है, और शराब से भी कितने ही घरों की शांति जो है वो भंग होने लग रही। अब युद्ध नशे के विरुद्ध पर इस बात को लेकर राजपुरा की इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए, इस बात की चर्चा है। घटना जो है अखबारों में सुर्खियां बनी कि जो है रिश्तों का कत्ल हो गया, और एक माँ जिसने हम जो है रिश्ता, जिस रिश्ते में हम कह दे करा कि ये भगवान से भी ऊपर दर्जा हुआ, बिल्कुल माँ बाप का जन्म दिता, जिन्हें दुनिया विखाई, तो फिर छो नशे दी लत ने उसे नू ही मारन माँ बाप मार देता। माँ बाप का जो दर्जा हुआ वो भगवान से ऊपर हम मानते हैं। एक पॉइंट पे अगर भगवान आकर खड़े हो जा तो हम अपने माँ बाप की ओर देखेंगे, भगवान को बाद में देखेंगे। ऐसे जो है संस्कार हमारे को दिए जाते हैं। लेकिन एक लड़के ने नशे में अपनी माँ की हत्या कर दी, इसका सिर दीवार में मार दिया, जिससे उसकी जो है मृत्यु होगी। इस घटना को लेकर जो है सोचने पे मजबूर हो गए। भाई क्या सरकारें जो है शराब को नशे की कैटेगरी में नहीं मान दी? इनसे जो है समाज में बड़े बड़े कांड होने लग रहे शराबियों से। शराब जो कर देते हैं, शराब के जो आदी लोग हैं वो घरों में झगड़े करते हैं, उससे जो है घरों में मारपीट करते हैं, घरों का माहौल खराब हो जाता है। और घर में जो हम जिस घर नाम स्वर्ग को हैं वो घर जो है कभी कभी जिस नाम शांति कुंज को है उसकी अशांति फैल जा, और वो स्वर्ग जो है नरक बन जा, सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण, शराब के कारण अशांति उसमें फैल जाती है। फिलहाल इस मामले की अगर हम बात करें तो पुलिस ने जो है जो आरोपी था सर्वजीत सिंह राजपुरा का, इस पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया, जो है इसको जो है अरेस्ट कर लिया। और नीलकमल जी इन घटनाओं से ये बात सामने आई भी नशे की किस किस कैटेगरी के नशे को रोकने की जरूरत है, ये भी सरकार ना सोचना और समझना पड़ेगा। जी जी उसके बाद आप कुछ कहना चाह रहे कहो? मैं सवाल तो बड़ा ये है कि नशा जड़ा हैगा शराब नूं नशा नहीं मन्निया जाता, क्योंकि कोई भी नशा जड़ा हैगा वो फिर दिमाग 'ਚ जाके इस तरह की हलचल करता है, जो लगातार वो एडिक्शन होंदी है तो फिर बंदे की सोचण समझण की जिहड़ी हैगी शक्ति वो खत्म हो जाती है। कि की शराब या ये जड़ा जिन्हों आपां शराब कह लीए तो करदा तो नशे दे लई बंदा पींदा, कि इहदे तो वड्डा खासा रेवन्यू आंदा, खजाना भरदा, पैसे आउंदे ने, ये डायरैक्ट जड़े ने सरकार के खाते 'ਚ जिहड़ियां पॉलिसियां बनदियां ने, क्योंकि इनू मानता दित्ती जाती है, ये
ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਸ਼ਾ नहीं हैगी? सवाल ये भी है। जिक्र एक वारदात को करूं, आपने वारदात शब्द यूज करा, इसने भी हम वारदात ही कहेंगे। तरीके हुआ अलग अलग, भाई किस शब्द को किस तरह से यूज करना जी। वारदात शब्द इसलिए यूज कर दिया क्योंकि एक घटना घटी, गैंग रेप की घटना, ये भी पंजाब की घटना है नीलकमल जी, पठानकोट इलाके की घटना है। अक्सर जो है पड़ोस में रहने वाली जो हमारी महिलाएं हैं पड़ोस की, वो हमारी माँ, बाण, बेटी, भतीजी, बुआ, वो सब रिश्ते में लगा है। लेकिन आजकल समाज पता नहीं किस ओर जान रहा है, ये रिश्ते तार तार होने लग रहे। इस घटना में नीलकमल जी एक पड़ोसी ने अपनी पड़ोसन को, जो लगभग बच्ची थी, नाबालिग थी, 15-16 साल की लड़की थी, इसको जो है दुकान पे थे सामान दिवाने का लालच देकर अपने पास बुलाया और एक ऑटो में उसको बिठा लिया नीलकमल जी। ऑटो में 2 लोग पहले ही बैठे थे, 2 लोग ने बैठे थे, उनको धमकाया कि अगर जो है वो रोड़ा करेगी, कुछ शोर मचाएगी तो उसको जान से मार देंगे। और उसने जो है दूर एक हवेली में ले जाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। ये भाई विश्वास किस पे करें भाई? पड़ोस में चाचे ताऊ भाई बंधु चीज़ तो दवाई देख रहा, कई बार बच्चे के मामले में भी चीज़ दवा दा, तो क्या पता था भाई इस तरह की घटना घटने की। ये भी एक दब्बा है समाज पर, ऐसे लोग जो इस तरह की घटनाक्रम करते हैं, इनसे जो है एक दूसरे के रिश्तों पे आँच आने लग रही, भरोसा जो है वो टूटने लग रहा। 3 ये लोग थे, तीनों गिरफ्तार कर दिया पुलिस ने, मामला दर्ज करके तीनों के तीनों गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल समाजिक भरोसा ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਗਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 1 ਸੀਟ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ 1-1 ਸੀਟ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗੀ? सवाल ये भी है, क्या बीजेपी नाम जनतक करेगी? कि बीजेपी जनतक करेगी? भाई देखो कांग्रेस पे सवाल क्यों? सवाल बीजेपी पर भी होना चाहिए भाई। बीजेपी की भी तो एक वोट जो है खराब हुई है, वहां भी तो गड़बड़ हुई है। सारा सिस्टम जो है ऐसा बन गया था, अगर 9 की 9 वोट जो है वो जिस तरह के 5 की क्रॉस वोटिंग होगी, 4 वैसे खराब होगी। अगर बीजेपी की वोट खराब ना हुआ तो फिर ये सीट तो चली गई थी। ਇੱਕ ਵੋਟ ਉਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਉਹ ਕਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੰਗਲ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮੰਜੂ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗੋਕੁਲ ਸੇਤੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ 2 ਵਾਰ,
ਉਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ पिछली बार ही कार्रवाई हो जाती तो आज यह नौबत नहीं आवा थी, क्योंकि जब पिछली बार कार्रवाई होती, देखो भाई क्या करे ना, पाने ना बहुत कुछ है, खोने कुछ नहीं। अब कांग्रेस के कुछ इस तरह की भी चर्चा होने लग रही, जो सीते की आपने बात करी भी, सरकार के पास खोने ना क्या है, सरकार तो जाने कांग्रेस के पास खोने ना क्या, सरकार तो जाने ते रही भाई, सरकार तो बीजेपी की है, तो क्यों ना फिर इनको ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए। भाई देखो इन लोगों को जो कांग्रेसी हैं उनको उन लोगों ने कांग्रेस की सोच के वोट दे रखी, जो बीजेपी वाले हैं उनको बीजेपी की विचारधारा के अनुसार से वोट दे रखी। जब वो लोग बीजेपी की विचारधारा से काम नहीं करेंगे, या फिर जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से काम नहीं करेंगे, तो ऐसों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, फिर अगे जाके बाद च विधान सभा के इलैक्शन नूं हले समा पिया है। आज आखिरी दिन है नीलकमल जी सेशन का, हरियाणा के बजट सेशन का चर्चा होगी, बहुत सारे सवाल लग रहे। एक सवाल जिसका मैं जिक्र करूंगा, बड़ा खास लगा मैंने, 18 से 45 साल के लोगों की हरियाणा में मौत क्यों होने लग रही, मतलब युवाओं की मौत क्यों होने लग रही, ये एक सवाल लगाया विनेश फोगाट ने। इसका जवाब क्या मिलेगा ये तो जो है टाइम बताएगा, क्योंकि जब हम शो रिकॉर्ड करने लग रहे हैं उस वक्त तक जो है इसका जवाब आया नहीं था। जब ये शो चलेगा हो सकता है उसका जवाब भी आ जाए, लेकिन सवाल बड़ा अहम है भाई, हरियाणा में 18 से 45 साल के लोग जो नौजवान है वो क्यों मरने लग रहे? क्या इसका इशारा कहीं और जा रहा है, जो पीछे महामारी फैली थी उसमें दवाइयाँ या कुछ और? ये भी एक देखने की बात है नीलकमल जी, चर्चा, क्योंकि सवाल बहुत सारे लग रहे हैं, तो ये सवाल भी कुछ खास नजर आया समाज के नजरिए से। बिल्कुल, क्योंकि बहुत घੱਟ उम्र के लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ SDA ਦਾ, ਸਡਨ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਰ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ जवाब ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ इंतजार रहेगा। फिलहाल चलते चलते नीलकमल जी मैं एक जिक्र और कर दूं, मैंने थोड़ा सा टाइम और दे दो क्योंकि टाइम वैसे ज़्यादा हो गया। एक प्रशासनिक अधिकारियों के कारण जो है कंपनसेशन की जो राशि है उसमें देरी पे हाई कोर्ट ने बड़ा सोना बढ़िया फैसला सुनाया, जवाबदेही तय कर दी भी अगर अधिकारियों की वजह से कोई किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई अधिकारी ही करें। इसी मामले में नीलकमल जी जो जस्टिस संदीप मोदगिल ने हरियाणा शिक्षा विभाग के जो वित्त सचिव हैं उनका 3 महीने का वेतन रोकने का आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया। याचिकाकर्ता को बकाया जो राशि थी वो सप्ताह में देने के, 1 सप्ताह में देने के निर्देश दिए, और कोर्ट ने जो है ये बात कही कि प्रशासनिक देरी का जो बोझ है वो खजाने पर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए जो जवाबदेही है वो तय करनी जरूरी है, और वेतन जो है उसका रोका जा रहा है ताकि अधिकारियों को कानूनी जो वित्तीय दायित्वों का जो समय पर पालन करना चाहिए वो कितना इम्पोर्टेंट है इस बात का एहसास हो। मतलब एक ये बहुत बढ़िया खबर लगी मैंने, काबिले तारीफ लगी। जब अधिकारियों की उनकी जवाबदेही तय करेंगे भी तेरी वजह से ये बात हुई तो इसका जिम्मेवार भी तो ही है, तो फिर नीलकमल जी स्वाभाविक है कि जो अधिकारी हैं वो अपना काम टाइम पे जरूर करेंगे। बिल्कुल, जो इस तरह की जिम्मेवारियां तय होणगियां तां ही करनगे, तां ये सरकारी अधिकारी इसलिए तो आदेश दे दिए। बिल्कुल आदेश दिते ने, इसे करके जिहड़ा है बहुत सारे लोग जिहड़े प्राइवेटाइजेशन की गल करते हैं कि उत्थे जदों डंडा चढ़दा ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।